Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and timeless reading, so let's see what message God wants to give to all my listeners. At present, I believe that whatever message comes in my reading, that is a guidance from God, and I also believe that God gives me cards for the reading. And for all those listeners जिनके लिए भी मेरी रीडिंग में मैसेज होगा, they will definitely reach this recording. So I'm shuffling the cards now. I'm mixing the cards well. आज मैं I will take out more cards today. I will do reading with more cards. So I'll take out all the cards first. Then I'll start the reading. You can hear the temple bells also in my recording. So my readings are fully, guided by divine. Okay, so this is a general reading, so it's for everyone. So some things will resonate with all my listeners, some things may not resonate with them because it's general reading. तो कुछ मैसेज किसी के लिए होगा, कुछ मैसेज किसी के लिए होगा. So you keep those messages with yourself that you feel is resonating with you and let other messages go for others. हर सिचुएशन सबके साथ फिट नहीं कर सकता, सबकी लाइफ की सिचुएशन अलग अलग होती है. But it's a general reading to every listener, all those listeners who will have a message in my reading, they will definitely reach this recording. And कुछ ना कुछ मैसेज उनके लिए होगा ही, तभी वो यहाँ तक आएंगे. And it's a timeless reading, so whenever you will hear this, whenever you will reach this recording, from then only it will start resonating with you. So I'm mixing the cards well. And I'll take out all the cards first. For personalized reading, you can contact me on the email ID that I have given in my description box. Okay. And my readings have no pre-decided topic, so whatever message will come in the reading, that will become its topic. Okay. Okay, so I'm taking out the cards now. Ace of Wands, Two of Pentacles, Judgment, Nine of Cups, Page of Swords, King of Pentacles, Six of Cups, Ten of Wands, Queen of Cups, Page of Cups, and the bottom of the deck is the Moon. Okay. I'll keep the deck aside now and I'll start the reading. Okay. गाइज, अभी तक जो भी एक्शंस किया है ना आपने अपनी लाइफ में, या जो भी आपने एक्शंस, जो भी आपने डिसीजंस लिए हैं अपनी लाइफ में, जो भी पास्ट में whatever actions you have done, on the basis of the decisions that you have taken, वो सबका ना जजमेंट, दिस इज़ द पीरियड ऑफ जजमेंट. अब आप ये जो टाइम है, यहाँ पर आप एनालाइज कर सकते हैं कि जो भी आपने एक्शंस लिए हैं पास्ट में, जो भी आपने किया है पास्ट में, अब उन सबको
एनालिसिस, उन सब का एनालिसिस करने का टाइम है ये एट प्रेजेंट। और मैं इस वक्त जो भी मेरे लिसनर्स हैं, आई एम श्योर कि वो बहुत ही अच्छे लोग हैं और दे आर गुड सोल्स। गुड सोल से मेरा मतलब है दोज हु इंटेंशनली कैन नेवर हर्ट एनीवन, हु कैन नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग विद अदर्स। क्योंकि ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड ना, ये इट इज़ टेलिंग मी दैट इट्स टेलिंग मी अबाउट योर मटीरियल अकम्पलिशमेंट्स। आपके साथ अच्छा हुआ है क्योंकि आप अच्छे हैं। आपने इमोशनली, आई वुड से इमोशनली यू हैव गेन्ड। आप लूज़र के पोजीशन में नहीं हैं, आप गेन करने के पोजीशन में हैं। और इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इंटेंशनली कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, समटाइम्स अनइंटेंशनली गलतियाँ कभी कभी हो जाती हैं। तो दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि लेकिन कोई जानबूझकर, आप में से कोई भी ऐसा नहीं है, मेरा कोई भी लिसनर ऐसा नहीं है जो जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाए या किसी को हर्ट करने का सोचे। और उसी का रिज़ल्ट है द गॉड इज़ हैप्पी विद यू एंड द गॉड हैज़ filled the cups of emotions in your life। जो पास्ट में आपकी सिचुएशन रही है वो काफ़ी ओवरबर्डन्ड थी, और ऑफ कोर्स वो जो ओवरबर्डन्ड सिचुएशन थी, बिकॉज़ इन पास्ट कुछ तो ऐसा नॉस्टैल्जिक आपने यू हैव आपने ऐसा कुछ बिताया है, और उसकी मेमोरीज़ में, उस चीज़ की मेमोरीज़ में आप काफ़ी ओवरबर्डन्ड रहे हैं, काफ़ी लोड आपने अपने ऊपर लिया है पास्ट में। और ये कुछ इमोशनल ही साइड मुझे दिखता है, क्योंकि लोगों से रिलेटेड है। किन्हीं लोगों के से पास्ट में कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जिनसे आप काफ़ी अटैच हो गए होंगे, और उनकी वजह से आपने अपनी लाइफ में काफ़ी परेशानियाँ मानसिक लेवल पर झेली हैं, काफ़ी लोड आपने ले लिया उस चीज़ का। और लेकिन आपने जो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, आपने अपनी लाइफ में फिर बहुत ही स्ट्रांगली एक न्यू बिगिनिंग किया है। आपने एक न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आपने डिराइव किया। जिन लोगों की वजह से आप दुखी हुए थे, अब उन लोगों को आपने एक तरह से, मैं ये कह सकती हूँ कि जाने दिया है और आगे बढ़ गए हैं आप, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो आपने एक नई दिशाई दे दी अपनी लाइफ को, कट ऑफ कर लिया उन लोगों से जिन लोगों की वजह से आप काफ़ी परेशान वाली सिचुएशन में चले गए थे। इमोशनली मैं कह सकती हूँ ब्रेकडाउन आपका हो गया था। तो आपने ना अपने आप को एक अलग ही मोड़ दे दिया है, अलग आपने एक रास्ता ही चेंज कर लिया अपना, और एक नई बिगनिंग कर ली अपने लाइफ में। पहले आपको उन लोगों से बातें करना पसंद था, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद था, जो कि अब वो लोग नहीं हैं आपकी लाइफ में। लेकिन अब क्या किया आपने, न्यू फॉर्म, अपनी लाइफ को एक न्यू फॉर्म दे दिया है। अब कुछ नयापन आप अपनी लाइफ में लेके आ गए हैं, एक नई फॉर्म ऑफ आपने कम्युनिकेशन शुरू कर दी है लोगों के साथ, ठीक है, जहाँ पर उन लोगों का कोई प्रेजेंस नहीं है जिन लोगों की वजह से आप एक ओवरबर्डन्ड सिचुएशन में चले गए थे। मेंटली आप काफ़ी ड्रेन्ड हो गए थे, और आपने अपनी फिनेंस पे भी काम किया है, आपने मेहनत की है, आपने अपने इनकम का सोर्स जो है वो उसको आपने पक्का किया है। अपने पैरों पे आप खड़े हुए हैं। फिनेंशियली आपने अपने आप को स्ट्रेंथन किया है, नई बिगनिंग की है अपनी लाइफ में। और इन सब चीज़ों को लेकर के जो भी आपने मेंटल टर्बुलेंस झेला होगा, फिर आपने एफर्ट्स लगा के अपने आप को वहाँ से निकाला होगा, अपनी फिनेंशियल पोजीशन को भी आपने स्टेबल किया होगा। ये सब कुछ आपके लिए लाइफ में अभी जजमेंट का पीरियड लेके आया है। इन सब के बेसिस पे जजमेंट जो है वो आपकी लाइफ में आया है, और उस जजमेंट का नतीजा ये है कि अब आपको इमोशनली गॉड हैज़ डिसाइडेड कि
जितना भी इमोशनल लॉस हुआ है पर्सन को, अब उसको फुलफिल किया जाए। 9 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि आपके मीन्स यू आर हैप्पी, गॉड हैज़ ग्रांटेड यू द हैप्पीनेस यू वांटेड। ठीक है, अब आप काफ़ी स्टेबल हैं, चाहे वो फिनेंशियल लेवल पे हो, चाहे वो मेंटल लेवल पे हो, काफ़ी स्टेबल हैं, क्योंकि जजमेंट आया है, आपने एफर्ट लगाया पास्ट में, तो डिवाइन ने आपको जजमेंट दिया है। और आगे भी मैं आपको एस ऑफ वंड्स का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि आगे भी डिवाइन इज़ गोइंग टू ओपन न्यू वेज फॉर यू। आपके लिए डिवाइन हमेशा कुछ ना कुछ नया आइडिया आपके माइंड में ड्रॉप इन करते रहेंगे, और आप उनके ऊपर एकदम बैलेंस करते हुए, उन सब चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करते हुए, सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से एनालाइज करते हुए, असेस करते हुए आप आगे बढ़ते रहेंगे। और ये सब मीन्स पहले खुद दूसरों की वजह से सिचुएशन, इमोशनल सिचुएशन में पड़ना, फिर वहाँ से अपने आप को निकाल के अपनी लाइफ को एक तरह से एक स्टेबल करना, इस्टेब्लिश करना, उसके बाद गॉड के प्रोटेक्शन में होने की वजह से नए अपॉर्चुनिटीज़ का आपकी लाइफ में आना, नए एक्शंस का लेना, और उनको भी बहुत वाइजली, उन एक्शंस, उन अपॉर्चुनिटीज़ को भी बहुत वाइजली यूज़ करते हुए आप एक ऐसे पर्सन, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाएंगे, जो ना कि सिर्फ खुद अपने में हील्ड होगा, बट दूसरों को भी हील करेगा। यू वुड बी केयरिंग टुवर्ड्स अदर्स। क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है, उसमें एक क्वीन क्या करती है, वो दूसरों का ख्याल रखती है। और ये कप्स, शी इज़ होल्डिंग अ कप इन हर हैंड, तो कप इज़ इट इज़ द सिंबल ऑफ इमोशंस। मतलब शी इज़ केयरिंग, लविंग टुवर्ड्स अदर्स। जो खुद में कंप्लीटली हील्ड होगा, जो खुद से प्यार करना जानता होगा, वही दूसरों को प्यार कर सकता है। जो खुद की केयर करना जानता होगा, वही दूसरों की केयर कर सकता है अच्छी तरीके से। जो खुद दुखी होगा, वो दूसरों को कैसे सुखी करेगा, क्योंकि वो पहले खुद ही दुखी है। तो क्वीन ऑफ कप्स वो एनर्जी है जहाँ पर पर्सन जो है वो एक इनर हैप्पीनेस को फील करता है, द हैप्पीनेस दैट कम्स फ्रॉम डिवाइन, द हैप्पीनेस विच इज़ नॉट जो डिपेंडेंट नहीं है ऑन एक्सटर्नल थिंग्स, दैट हैप्पीनेस जो ऑटोमेटिकली अंदर चल रहा है, वैसा ही पर्सन दूसरों को हैप्पी कर सकता है। ओके, जो एक्सटर्नल थिंग्स से अफेक्ट नहीं होता और बहुत चीयरफुल रहता है, खुद अपने आप से ही जो हैप्पीनेस को डिराइव कर रहा है, वैसा ही पर्सन दूसरों के टुवर्ड्स भी लविंग हो सकता है, दूसरों के टुवर्ड्स भी केयरिंग हो सकता है। तो इस तरह की एनर्जी में आप जाने वाले हैं। और पेज ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो यही कि आप नए स्टेप्स लेते हुए कि कैसे अपने आप को इमोशनली हील्ड कैसे रखा जाए। तो आप अपने इमोशंस पे यहाँ पे बहुत मुझे काम करते हुए दिख रहे हैं। पास्ट में भी आपने किया है और प्रेजेंट में भी आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिली है, क्योंकि पास्ट में आपने अपने इमोशंस पे ही काम किया है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि प्रेजेंट में भी अब आप काफ़ी आप ओवरकम कर चुके होंगे, क्योंकि जो पास्ट की जो सिचुएशन आपने जो बिताई है ना, द मून का कार्ड मुझको बता रहा है कि काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ से आप होके आपने गो थ्रू किया है, काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ से, काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस से, एकदम अपोजिट सिचुएशंस से आप निकले हैं। वो मैं इस बेसिस पे कह सकती हूँ कि पास्ट में आपकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ होगा, जिसकी वजह से आप काफ़ी मेंटल टेंशन, मेंटल टर्बुलेंस आपने फेस किया होगा डेफिनेटली, क्योंकि द मून का कार्ड प्रेजेंट है यहाँ पर। और मून के कार्ड में एकदम लाइक वाटर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और वाटर जो है दैट इज़ द सिंबल ऑफ इमोशंस। एकदम उथल पुथल, अब बहुत जैसे पानी में काफ़ी वेव्स होते हैं ना, ओके, इन द फ्लोइंग वाटर, जस्ट लाइक दैट
ऊपर नीचे, काफ़ी मानसिक स्थिति भी काफ़ी ऊपर नीचे। तो आपने अपने आप को हील करने की बहुत कोशिश की है, बहुत अपोजिट सिचुएशन और अनसर्टेन सिचुएशंस आपने फेस किया है। मतलब आपको जो जैसा दिख रहा होगा, कोई सिचुएशन, आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन आपने इमेजिन किया होगा, कुछ इमेजिन करके आप किसी चीज़ में आपने एंटर किया होगा और वो सिचुएशन जो है वो कम्प्लीटली उसके अपोजिट निकली और आप वहाँ से डिसअपॉइंटेड और ब्रोकन होके फिर वहाँ से बाहर निकले और उस चीज़ की वजह से ओवरबर्डन्ड, बहुत लोड आपने अपने ऊपर ले लिया, काफ़ी परेशान हो गए। अपने आप को कैसे संभालें, इस पे आपका फोकस चला गया। और ये अच्छी बात है कि होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने अगर किसी की वजह से दुख हुआ तो उस व्यक्ति को ही डिस्ट्रॉय करने के पीछे लग जाएंगे कि उसकी वजह से हुआ है। तो ये जो है ये बहुत नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव थॉट है, क्योंकि आप किसी दूसरे का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, उल्टा गलत करके आप खुद का अपना कर्म खराब कर लेंगे, अपना कर्मा खराब कर लेंगे एंड फिर खुद बाद में और सफ़र करेंगे। लेकिन आपने क्या किया, यू चोज़ द अदर वे, यू चोज़ द कंस्ट्रक्टिव वे। आपने उस पर्सन को छोड़ ही दिया, उन चीज़ों को छोड़ ही दिया, अपने ऊपर काम किया। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड प्रेजेंट है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड प्रेजेंट है। आपने अपने ऊपर काम किया, अपने आप को हील किया, अपनी फिनेंस को मजबूत किया और अब खुद की एफ़र्ट की वजह से खुद को आपने एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इस्टेब्लिश किया। और जजमेंट जब आया तो वो भी आपके फेवर में आया, क्योंकि जजमेंट 9 ऑफ कप्स लेके आया और 9 ऑफ कप्स का मतलब है कि अकम्प्लिशमेंट। लेकिन ये जो अकम्प्लिशमेंट है ना, ये डिपेंडेंट नहीं है किसी चीज़ के ऊपर। ये अकम्प्लिशमेंट आपके अपने इनर, जो आपका एक आपके इनर वर्ल्ड से आपने खुद क्रिएट किया है इस 9 ऑफ कप्स को। और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आप जाने वाले हो। पेज ऑफ कप्स की तरह आप बहुत ही क्यूरोसिटी के साथ नए आइडियाज़ को लगा करके अपने आप को इमोशनली हील करते हुए, खुद से कोशिश करते हुए, अपने आप को एकदम हील करते हुए और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में पहुंच जाना, मतलब खुद को हील करते करते, खुद को एफ़र्ट लगा के, अपने ऊपर एफ़र्ट करके, खुद को हील करते करते आप क्वीन ऑफ कप्स बनने वाले हो। मतलब दूसरों के लिए भी आप एक हीलर बनने वाले हो। दूसरों, यू वुड बी वेरी केयरिंग टुवर्ड्स अदर्स, यू वुड बी वेरी लविंग टुवर्ड्स अदर्स एंड ओनली दोज कैन बी लविंग टुवर्ड्स अदर दोज हु लव देमसेल्व्स। तो इस तरह की एनर्जी मुझे रीडिंग में दिख रही है। और द प्रेजेंस ऑफ द एस ऑफ वंस दैट शोज़ मी कि आपको, यू विल कीप, डिवाइन विल कीप गेटिंग यू अपॉर्चुनिटीज़। और डिवाइन जब अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं ना, डिवाइन जब चाहते हैं कि द पर्सन गो टू दिस पर्टिकुलर वे, तो दैट मीन्स कि वो जो वे होगा दैट वुड बी बेस्ट फॉर द पर्सन, दैट वुड बी लाइक लाइफ चेंजिंग, पॉजिटिव वे में। उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर डिवाइन आपको कोई रास्ता, किसी रास्ते पे अगर डिवाइन लेके जाना चाहते हैं, मतलब कि यू आर सेफ इन द हैंड्स ऑफ डिवाइन, यू आर प्रोटेक्टेड एंड द सक्सेस इज़ डेस्टिन्ड ऑन दैट वे। तो इस तरह की रीडिंग यहाँ पे निकल के आई है। सो जस्ट बी हैप्पी गाइज। द प्रेजेंस ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स which is showing your financial stability, queen of cups which is showing your emotional fulfillment, not towards yourself but you will bring emotional fulfillment for others also, you will heal others also, you will be in that energy. Presence of 9 of cups means आप एकदम डिवाइन को थैंक्स करते हुए, you are thanking God for helping you overcome all your sorrows, all those situations that put you in the overburdened situation, और सब सारे नॉस्टैल्जिया से आप ओवरकम करते हुए सब कुछ। और जजमेंट जो आपकी लाइफ में अभी जजमेंट का ही पीरियड चल रहा है, मतलब आपने अपने लाइफ के पास्ट एक्शंस को, अपने पास्ट डिसीजंस को, सबको एनालाइज करके आप एक ऐसी स्थिति में अपने आप को लेकर आए हैं जहाँ पर अपने आप को आपने इमोशनली पूरा अपलिफ्ट कर लिया है और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए हैं। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता
कोई पर्टिकुलर पर्सन आपकी लाइफ में है नहीं है, कोई पर्टिकुलर पर्सन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। आप अपने में ही 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में चले गए हैं। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर नाउ। मैं मिलती हूँ आपसे नई रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।